الرحمن الرحیم، پروگرام نیوز 9 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا ملک، اور آج اپنے پروگرام میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تحصیل کوٹ چٹا، جو کہنے کو تو صرف 20 کلومیٹر دور ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ تحصیل میں 121 مواضعات شامل ہیں، 8.5 لاکھ سے زائد آبادی ہے، اور کوٹ چٹا شہر کی آبادی جو ہے وہ 2.25 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ بنیادی مسائل جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ 11 سال قبل بننے والی اس تحصیل میں نہ تو ابھی تک تحصیل کورٹس جو ہیں وہ قائم ہو سکی ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو انصاف کے لیے، ابھی بھی انصاف کے حصول کے لیے انہیں ڈیرہ غازی خان جانا پڑتا ہے، جو یہاں سے نہ صرف سفر ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی تحصیل ہے۔ اس تحصیل کے ایک کونے سے درخواست جمال سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک آنا نہ صرف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کو انصاف کے حصول کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو ڈیرہ غازی خان کے لیے ٹرانسپورٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کوئی اربن ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ 2.25 لاکھ سے زائد آبادی والے اس شہر میں پینے کے صاف پانی کی جو کمی ہے، صرف ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے۔ نکاسی آپ کے مسائل تو اس خطے کے ہر علاقے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ قوانین کے حوالے سے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ پولیس فورس جو ہے وہ یہاں امن امان قائم رکھنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اقدامات کرتی رہتی ہے۔ یہاں جو وارداتیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کیا کیا مسائل ہیں شہری، کن مسائل سے دو چار ہیں، کس طریقے سے یہ مسائل جو ہیں حل ہوں گے، اب تک حل نہیں ہو سکے کہ 11 سال سے تحصیل کا سٹیٹس لینے کے باوجود بھی یہاں بنیادی مسائل جو ہیں وہ جوں کہ توں ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ کوٹ چٹا شہر میں مسائل کا فقدان ہے سر۔ افسران کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کسی افسران کو اپلیکیشن دی جائے تو وہ اس کے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ افسران اپنے دفتروں میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ڈپٹی پہ آتے نہیں ہیں، گھر بیٹھ کے تنخواہ بٹورنے کے چکر میں جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، جو کہ پورے علاقے کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ 4 مہینے سے سیوریج کا نظام بند ہے اور اپلیکیشنیں دے کے لوگ تھک چکے ہیں۔ اگر ٹریفک کا نظام ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے کوئی ٹریفک پولیس والا موجود نہیں ہے۔ سائڈ پہ روڈوں پہ کھڑ کے رشوت وصول کی جا رہی ہے، مگر جہاں پہ صفائی نظام یا ٹرانسپورٹ چلانی ہے وہاں پہ پولیس والے موجود ہی نہیں ہیں۔ جی بالکل، جو ہے مسائل جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے بھی، جو انڈس ہائی وے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ شہر جو ہے، اس کے دونوں طرف سے انڈس ہائی وے جو ہے گزری ہے، بائی پاس کے ذریعے اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے۔ پہلے تمام تو ٹریفک اس شہر میں سے گزرتی تھی، اور ابھی بھی سواریاں لینے کے لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ شہر میں دار آتی ہے، چنچی رکشوں کی وجہ سے اور تجاوزات کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مسائل سامنے ہیں۔ کورٹس کیوں نہیں ہے؟ 11 سال سے تحصیل کا سٹیٹس ہے تو کیوں نہیں؟ اس کے حوالے سے رکاوٹیں کیا ہیں؟ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان، تقریباً عرصہ 11 سال سے تحصیل کوٹ چٹا معرض وجود میں آئی۔ یہاں پر اے سی صاحب تو ماشاءاللہ موجود ہیں، تمام تحصیلدار صاحبان بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ ریونیو کا کام تو چل رہا ہے لیکن جوڈیشل کمپلیکس ابھی تک تعمیر نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی سرکاری رقبہ موجود نہیں ہے۔ جب بھی کوئی وہاں ہائی کورٹ سے کوئی لیٹر جاری ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو یہاں پہ کوئی رقبہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نا سرکاری رقبہ جب نہیں ہے تو ایکوائر کرانا پڑے گا، اس کے لیے ہم نے مختلف طریقوں سے درخواستیں۔ کتنا بڑا ہے، کتنے کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں تحصیل کوٹ چٹا کے حوالے سے؟ کتنی بڑی آبادی ہے، علاقہ کتنا بڑا ہے، تھانے کتنے ہیں؟ جی 5 تھانے ہیں، 121 جو ہے نا مواضعات ہیں، 3500 کے قریب جو ہے نا وہ کیسز ہے وہ پینڈنسی میں ہیں۔ 3500 کے طریقے سے جب دیکھا جائے تقریباً 10,000 کی آبادی وہ ہمیشہ ڈیرہ غازی خان تشریف لے جاتے ہیں اپنے مقدمات کے لیے۔ عوام کے لیے کتنا مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ عرصہ 11 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کو فنکشنل نہیں کیا گیا۔ میں تمام حکام بالا سے استدعا کرتا ہوں کہ فوری طور پر ہمیں رقبہ ایکوائر کر کے دیا جائے تاکہ وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس معرض وجود میں، تاکہ انصاف کا جو ہے وہ بول بالا ہو سکے، اور انصاف کا حصول جو ہے وہ اس خطے کے جو بنیادی حقوق میں شامل ہے اس خطے کے لوگوں کے، ان کو یہ بنیادی حق جو ہے وہ مل سکے کہ یہاں جو تحصیل کورٹس ہیں ان کا کمپلیکس جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس جو ہے وہ کام کر رہا ہے، میونسپل کمیٹی کام کر رہی ہے، بلدیاتی ادارے ہی بنیادی طور پہ جو صفائی اور صحت سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
सही शहर होनी बहुत जाते पानी खड़े थे शहर पीवन के पानी के भी जो मसाइल हैं वो क्यों नहीं हल थी सके। रजा साहब तुसां सही निशानदेही की है मसाइल दी। मसाइल तो पूरे पंजाब हैं, हर देहात हैं। असां जॾां दे इत्थां चेयरमैन बनया सी पहले यूनियन कौंसल है तो उन वेले इंदे मसाइल बहुत ज़्यादा। उनके बाद पहली दफ़ा म्यूनसिपल कमेटी बनी है और सबको फंड भी मिले पंजाब गवर्नमेंट तो, और असां अपने टेन्योर इंदे भरपूर इंदा इस्तेमाल किए थे। इंदे पूरे शहर की सीवरेज मुकम्मल कराई से और पूरे शहर टफ टाइल वगैरह लवाई से, और इनके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट भी मैं अपने दौर लवाए, और इंशाअल्लाह ताला साड़ी एक ख्वाहिश है कि इस 4 बे फिल्ट्रेशन प्लांट लग वजन भाई। क्यों तुसा क्या समझते भी जरूरत कितने फिल्ट्रेशन प्लांट दी है ते जड़ा है कि क्या वो उनके फिल्टर्स और तब्दील थीने खड़े क्या इतने लोगों को पीवन साफ पानी की सहूलत मिलती भी है? हाँ जी वो फिल्टर तब्दील करें लेकिन ये कि उनको आखिर दसना पौंदे उनके अवेयरनेस कोई नहीं, क्योंकि जोड़े मुतलका सारे अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं उन्होंने ये पता ही क्या नहीं कि फिल्ट्रेशन प्लांट किमें साफ पानी देना पाया या नहीं देना पाया। इन्हें किन्ने TDS मीटर क्या नहीं, वो TDS मीटर मैं अपने रखा मैं चेक करना रहना गाय बगाए उनको मैं वाला दसना रहना उनको उनकी मैम्ब्रेन वगैरह तब्दील करेंदे रहते हैं। लेकिन यह कि आवाम जड़ा है वो ही किन्नी ज़्यादा डिमांड करेंदी है कि इतना हर इलाके दे विच हर महल्ले दे विच फिल्ट्रेशन प्लांट होवन, कम अज कम 4 बे होवन। ये एक प्लांट है और नाकाफ़ी है। इनके अलावा बाकी सफाई का इंतजाम जड़ा है मुलाजमीन जड़े सफाई वाले हैं, मगर इतना जड़े असां अपना टेन्योर जड़ा साडा हा जल्ले असां इहदे चेयरमैन और सारे रह गए सारे बल्दियात को इन्होंने फ़ौरन ख़त्म कर दिते। जड़े नवी हुकूमत आई है इन्हें के साकू क्या ख़त्म किए, इन्होंने पूरे आवाम के जेरे तकलीफान उन्हें इजाफा कर दिते। उनके बाद जो कम शुरू थिया पिया वो भी ख़त्म थी गए। जितना असां काम शुरू किया 0 कने असां 70% तक कर गया थे, हुण वो वापस 0 ते आ गए। सफाई इंतजाम ख़त्म थी गए, सीवरेज जो नकारा थींदा वेंदे, मशीनरी सारी ख़राब कर दी। अगला गल है कि अगर हुण सारा काम शुरू थी तो वल मोड़ मुंडो वल नवी समी करनी पोसी। इंशाअल्लाह असां अगर दोबारा मुंतखब थी गए तो असां वाल दोबारा स्टार्ट गिनसूँ, मशीनरी भी नवी गिनसूँ। देखो जदीद मशीनरी की जरूरत है। सफाई जी है और सिर्फ बंदे नालों पुराना तरीका कोई नहीं रह गया। हुण सारे शहर तहसील है कि शहरी आबादी है, इनको शहरी वसायल चाहिए, इनको शहरी मशीनरी चाहिए, इनको इक्विपमेंट चाहिए, इनको मतलब हर लिहाज नाल असां इनको शहरी। ये रोड का मसला जो है बाईपास रोड तो बन गए, लेकिन हुण तुसीं देखो कि इतना ट्रैफिक क्यों है, इतना 1 वे कोई नहीं। इतना रेडी वाले जो रेडी कल्चर रेडी वाले किड्डे वजन, उन्हें वास्ते कोई जगह कोई नहीं, पार्किंग वास्ते कोई जगह कोई नहीं, तहसील जड़ा ऑफिस है उनके वास्ते कोई जगह कोई नहीं, ऑफिस पूरे कोई नहीं, गवर्नमेंट कने कोई हर कोई किस्म की उन्होंने पूरी स्कीम के तहत इनको पूरे हिंदे मुताबिक उन्होंने जो तहसील को सही नहीं बनाया। जी तहसील को सही नहीं बनाया। तहसील जो रिसोर्सेज हैं, कहने का मकसद ये कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से नहीं हो सकी कि यहाँ के लोगों को जो है वो बुनियादी मसाइल जो हैं हल हो सके। कहने को जो है वो तहसील का दर्जा दे दिया गया, नाम दे दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार रेवेन्यू के हवाले से यहाँ मौजूद है, लेकिन तहसील कम्प्लेक्स जो है वो मौजूद नहीं है। क्या बुनियादी मसाइल हैं? सीवरेज का बुनियादी मसाइल है, जैसा कि झोंक रोड पे हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका है। सीवरेज का झोंक रोड पे इंतहाई खस्ता हालत में है सीवरेज। हमारे घरों पे हमारी जमा पूंजी सारी ख़त्म होने को है सीवरेज की वजह से। पानी हमारे घरों में इंटर हो गया है, दीवारों के गिरने का खदशा है। मेहरबानी करके एक्शन लिया जाए और हमारी सीवरेज का निज़ाम बनाया जाए। बिल्कुल जी, सीवरेज का जो है वो हर जगह बड़ा इशू है। हाँ जी, खाद बीज आजकल बड़ा इशू चल रहा है किसान में, क्या सूरत हाल है? मिलती भी है? कोई नहीं मिलती पी है सर, खाद बिल्कुल कोई नहीं मिलती पी है। दुकानदार जरा वड्डे डीलर हैं वो ट्राला आने 1200-1000 बोरी आने वो 600 बोरी चला देंगे लाइन नाल। जरा सिफारशी लोग हैं, सिफारशी लोग तलक जाते उठाई देंगे 10 बोरी 15 बोरी, गरीब को नहीं देंगे पैन खाद। आधा बोरी वाला ट्राला वो स्टॉक करें ब्लैक दे बचे 3000 रुपये 2800 रुपये बोरी। ये जुल्म है। हुकूमत क्यों नहीं एक्शन गिनता पे ये चीज़ दे होते? हुकूमत इमरान खान बड़ा वजीर को आपको उम्मीद तकरीर करन तो असम्बली दे। बिल्कुल जो है मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। किसान भी क्योंकि बड़ा इसका तहसील का एक जो बड़ा एरिया है वो जो रकबा है वो वहाँ फसलें काश्त की जाती हैं और गंदम की फसल एक वसी वाली रकबा, क्योंकि 121 मवाज़ात हैं जिन मवाज़ात पर जो है वो इस वक्त गंदम की फसल जो है वो काश्त की गई है। और
यहाँ जो मसाइल हैं खाद के हवाले से, बीज के हवाले से, वो भी किसानों को दरपेश है। सड़क की जो सूरत हाल है वो देखें कि सड़क ये एक इंडस हाईवे का ऐसा रास्ता है कि जो कश्मोर से DI खान तक इस खत्ते को सारे रास्ते को जोड़ता है, और यहाँ जो तजावज़ात की भरमार है वो इस कदर शदीद है कि यहाँ से इतनी खुली शाहराह जो है वो एक तंग गली में सुकर गई है, और लोगों के जो हवाले से वो मसाइल का सामना यहाँ करना पड़ रहा है लोगों को इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि कोट चुट्टा के मज़ीद मसाइल क्या है और उनका हल किस तरीके से मुमकिन है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, कोट चुट्टा में मौजूद है, और कोट चुट्टा के जो मसाइल हैं उसके हवाले से शहरियों से जो गुफ्तगू हो रही है, जो बात हो रही है, उसमें शहरी सिर्फ इस बात पे शिकवा करना नज़र आ रहे हैं कि ये मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। इसमें जो लोगों को बिलखसूस यहाँ खेल के मैदान नहीं है, किसी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, और सबसे बढ़ के यहाँ कोई ऐसी सरकारी ज़मीन नहीं है जहाँ कोई सरकारी दफ्तर जो है वो प्रॉपर तरीके से कायम किया जा सके। जो सरकार की ज़मीन है यहाँ ना होने के बराबर, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं वो लोगों की मुश्किलात को जो है वो बढ़ा रहे हैं। जनाब तहसील कोर्ट्स तहसील बन गई, तहसील कोर्ट्स नहीं बने, DG खान के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं है, तो क्या क्या मसाइल है, किस तरीके से इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपने कभी कोई कोशिश काविश की? कोशिश के हवाले से यही है कि हमारा जो कोट चुट्टे की जो आबादी है 126 मुआवजात है यहाँ पे, ठीक है, 9 लाख से अबव यहाँ पे आबादी है। जुडिशल कम्प्लेक्स होना चाहिए। 3500 केसेस हैं जो कि DG खान के अंदर पेंडेंसी के अंदर है। उसके अलावा सफाई सुथराई के हवाले से कोई हाल नहीं है, पुरसान हाल है। ट्रैफिक के हवाले से देख लें, ट्रैफिक बार बार यहाँ पे जाम होती है, बाईपास होने के बावजूद फिर भी आप हालात देख रहे हैं, सफाई सुथराई का कोई नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है यहाँ पे। तो यही मसाइल हैं जैसे भी है जी। अच्छा, बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान है, नौजवानों की क्या एक्टिविटीज़ है, वो जिनसे बात करें वो कहते हैं चूँकि यहाँ सरकारी जगह नहीं है इस वजह से कुछ नहीं बन सकते, तो बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स जिम्नेजियम, कोई उनकी शाम की सरगर्मियों के हवाले से यहाँ कोई इक़दाम हैं? नहीं, यहाँ पे इस तरह का कोई इक़दाम नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई जगह अवेलेबल है। अगर किसी को कहा जाता है कि कोई खेल का ग्राउंड हमें खुलवा के दिया जाए तो वो आगे इश्यूज़ रख देते हैं कि ये हमारे मसले मसाइल हैं। हमारे यहाँ पे शहर में बहुत से मसाइल हैं जो हम बहुत परेशान हैं इस हवाले से। तो कभी अराकीन असम्बली जो अरबाब अख्तियार जो आपके हैं, ब्यूरोक्रेसी है, मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, वोट दिए हैं, तो क्या लगता है कि वो मसाइल हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ये हुकूमत तो हमारी नज़रों में तो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। अब तक की आप मौजूदा कारकर्दगी देख लें तो ये सिफर है। तो आगे भी हमें कुछ नहीं लगता कि इस हुकूमत से किसी किस्म की हमें कोई तवक्को नहीं है अलावा महंगाई के, बेरोज़गारी के। तो अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि महंगाई बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, ये आपके सामने है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, चोरी चकारी भी बढ़ रही है, उसके साथ जैसे जैसे जो जराइम है वो बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और मुल्क की हालात आपके सामने हैं, यहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइन में ही लगना पड़ता है। अच्छा, जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी को किस तरीके से देखते हैं आप? 4 थाने हैं यहाँ तहसील कोट चुट्टा में, तो क्या जो मोटरसाइकिल डकैती की या चोरी की वारदातें हैं उस हवाले से? जी, अब मौजूदा हमारे अब नए DSP साहब आए हैं, इजाज़ बुखारी साहब, उनसे अवाम को बहुत अच्छी तवक्कुआत भी हैं और वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और अब हमारे मुल्क में या हमारे जो शहर है कोट चुट्टा, पुलिस के हवाले से वो बेहतर इकदाम अब हो रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी देख रहे हैं कि ये जो इकदाम हैं ये बेहतर है और इससे लोगों को जो है वो रिलीफ मिल रहा है। चलें, कोई अच्छी बात तो सामने ही। अच्छा, पीने के साफ़ पानी के हवाले से क्या सूरत हाल है? कितने फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और क्या लग रहा है कि ये पानी काफ़ी है? जी, हमारे यहाँ कोट चुट्टे में एक फ़िल्टर प्लांट था जो म्यूनसिपल कमेटी में चेयरमैन ने बनाया था, तो वो अब ये है कि बल्दियात ख़त्म हुई है, उसकी अब कोई मेंटेनेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो भी खस्ता हाल हो गया है। और दूसरी तरफ एक और हमारे यहाँ पे सरदार साहब हैं, सरदार महमूद कादिर खान, उन्होंने अपनी काविश से और अपने ज़ाती तरीके से उन्होंने एक फ़िल्टर प्लांट नया बनवाया है, वो अभी इंशाल्लाह जल्द वो ओपन होगा।
वो भी हमारे लिए हमारे मतलब वो अपनी मदद आपके तहत बनवाया गया? जी जी, वो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनवाया। हाँ जी भैया, केड़े केड़े मसले हैं जी कोट छुट्टे दे? कोट छुट्टे के अंदर सारी गंदगी है, गलियों में जाके देख लें, रोड पे जाके देख लें, जहाँ भी देख लें हर 5 मिनट के बाद ट्रैफिक जाम होती है, कोई किसी का काम नहीं है, कोई किसी का ख्याल नहीं करता है, एक दूसरे के अंदर मारने के अंदर तुले हुए हैं, एक दूसरे का एहतराम कोई नहीं करते। गंदगी के ऊपर रोड पर देख लें, गलियों में देख लें, नालियाँ भरी हुई हैं, कोई गली भी देख लें आप, कोई साफ सुथरा माहौल नहीं मिलेगा आपको। साफ सुथरा माहौल नहीं मिलेगा जी, क्या किस तरीके से जो है मसाइल हल किस तरीके से होंगे? ये हुकूमत ही करेगी और कौन करेगा? नहीं, हुकूमत के तो आपने वोट दिए थे, तो क्या आप समझते हैं कि आपके ने जो वोट दिए थे उसका ये मामला आपको हल होते हुए नजर आ रहे हैं कि उस तरीके से? कोई नजर नहीं आ रहा जी। कभी नहीं होगा मामला हल होगा। ये हमने जो वोट दिया है बिल्कुल ज़ाया किया है 5 साल के लिए। इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत मुस्लिम नून लीग की होगी। नहीं जी, ये तो अभी वोटर जो है वो अपना जहन उन्होंने सेट करना शुरू कर दिया है कि मसाइल जो हैं। अच्छा जी, क्या मसाइल है नौजवानों के यहाँ, क्या मसाइल? फिल्टर प्लांट वगैरह लगे हुए हैं ना मेन टाउन में, उनकी ना टूटियाँ हैं, ना कोई केयर है, ना कोई पानी की निकासी है, पूरी गली भरी हुई है, पिछले मंदिर वाली गली, और भुट्टा कॉलोनी में भी सारी गलियाँ भरी हुई हैं। कोई म्यूनसिपल कमेटी का अफसर नहीं आ रहा, कोई इसको चेक नहीं करता जी। अच्छा, कोई भी चेक नहीं करता, मसाइल जो हैं वो जो के तू हैं। अच्छा, बाजार के जो है ये शहर के जो मसाइल हैं ये किस तरीके से देख रहे हैं आप? तजावजात के लिए हमें खुद दुकानदारों को भी चाहिए कि हम एहतियात करें, हम अपने सामान अंदर रखें, रोडों पे ना लेके आएँ, और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन इनको चेकिंग भी करते रहे, उनको तजवीज़ भी दें कि ये ताकि अपना सामान ये अंदर करें। यहाँ कोट छुट्टा में रोही जो है मौजूद है, यहाँ के लोगों की आवाज़ है, यहाँ के मसाइल जो है वो उजागर करते रहते हैं। राना सलीम रोही के जो है वो नुमाइंदे हैं। राना साहब, जो है तहसील जल्दी में बना दी गई, क्या कहानी क्या है? तहसील बनी और कोई 7 लाख आबादी कह रहा है, कोई 9 लाख आबादी कह रहा है, कोई 8 लाख आबादी कह रहा है कि लाखों में आबादी है, और जो तहसील कोट छुट्टा का शहर है इसकी आबादी भी लाखों में है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ के जो शाहरा है वो सबके सामने है, सफाई की सूरत हाल भी। तो क्या कोई पुरसाने हाल नहीं है? आप गाय बगाए आवाज़ भी उठाते रहते हैं, तो क्या कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता आपको? जी रज़ा साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 2010 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो ये फ़ैसला किया था वो कोट छुट्टा को तहसील बनाने का एक जज्बाती फ़ैसला था। आज 12 साल यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं कोट छुट्टा को तहसील बने हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो तहसील का मुकम्मल हो चुका है। यहाँ की आबादी के लिए जो सेहत की सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं, सफाई को देख लें वो बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसकी जो असल वजह मैं जो कहूँगा वो मैं यहाँ की आवाम को कहूँगा। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने मसाइल को उजागर करने, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जागीरदाराना निज़ाम और अफसरशाही उन पर मुसल्लत है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ के लोगों को यहाँ के मसाइल हल करने के लिए अब मैदान में आना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मसाइल हैं, पीने के साफ़ पानी, अच्छा तालीम और सेहत, ये भी इश्यूज़ हैं। हमने जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात की कि जो शाहरा हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, गलियों में पानी खड़ा है। तो सेहत और तालीम की क्या सूरत हाल है? सेहत क्या, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 8 लाख आबादी के लिए एक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है जो अभी नामुकम्मल है, जिसको अभी मैं समझता हूँ कि वो अभी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भी नहीं है। वहाँ पर अगर डेली की एवरेज मरीज़ों की देखी जाए तो मेरे ख्याल में 5 से 10 हज़ार रोज़ाना के जो मरीज़ हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। उनके लिए अद्वियात की वहाँ पर किल्लत है। हमारे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तिब्बी आलात नहीं है। अगर एक्सरे मशीन की बात की जाए तो पुरानी सन 70 के दौर की वहाँ पर एक्सरे मशीन लगी हुई है, जो मेरे ख्याल में साबित हड्डियों को भी टूटा हुआ दिखाती है। ये तो सेहत की सहूलियात हैं। हाँ, एजुकेशन की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर कुछ सहूलियात अब पिछले दौर में हुकूमत ने और इसमें जो वो कुछ बेहतरी आई है एजुकेशन के हवाले से, लेकिन सेहत की सहूलियात जो हैं वो तहसील के हिसाब से वो जो है नाकाफ़ी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ के लोगों को जो है वो अपने अदालती मामलात के लिए डेरा गाजी खान जाना पड़ता है, कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं? प्राइवेट लोकल बसें इस्तेमाल करते हैं लोग यहाँ पर डेली। एक तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, दूसरा वहाँ उन्हें जलील होना पड़ता है डेरा गाजी खान की अदालतों में। जब तक यहाँ पर जुडिशरी कायम नहीं होगी यहाँ के लोगों के मसाइल बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। अब यहाँ पर सेशन कोर्ट ने जो आर्डर दिया है यहाँ पर जुडिशरी के काम के लिए, यहाँ पर जो तहसील इंतज़ामिया अपना इशू बता रही है वो बता रही है कि यहाँ पर हमारे लिए जुडिशरी के काम के लिए जो है लैंड नहीं है। वो भी अब इन्होंने तहसील इंतजाम में लिख कर दे दिया है कि हमारे पास यहाँ पर जुडिशरी के लिए जो है ज़मीन नहीं है। लेकिन अब ज़मीन तो आखिर एक्वायर तो करनी पड़ेगी ना, वो सेशन कोर्ट करे या तहसील इंतजामिया करे। जो मैं आपको एक और बात या मैं आपको ये बता दूं कि
कोटशुटा जनूबी बाईपास के साथ 22 एकड़ रकबा रहीम बख्श ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का है, जो 8 से तकरीबन 10 साल कबल वो यहाँ से डिफ़ाल्टर होकर छोड़कर चले गए थे। वो जो है रकबा वो इस वक्त कुर्की में है, जो और इसके गवर्नमेंट के इख्तियार में है। उस रकबे पर वो काबिज हो, प्राइवेट माफिया वहाँ पर कब्ज़ा कर रहा है। अगर ये चाहते हैं, तहसील इंतज़ामिया अगर चाहे तो वहाँ पर कब्ज़ा करके वहाँ पर तहसील जुडिशरी भी बना सकती है, वहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बन सकता है, और यहाँ के लोगों के लिए जो तफरीह मकाम है वो भी यहाँ पर मैसर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जो है वो हल भी बता दिया है राना सलीम ने। यकीनी तौर पे जो है वो यहाँ जो मसाइल हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं। ये मसाइल हल कैसे होंगे, इनको हल कौन करेगा, क्या इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे, अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको किस हद तक बेहतर बनाया जाएगा, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर किस हद तक यहाँ जो मामला हैं उनको हल करने के लिए वसाइल को बरोए कार ले रहे हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद कोटशुटा के जो SDPO हैं और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इंतज़ामी अफसर हैं, हम उनसे बात करेंगे इन मसाइल के हवाले से कि इन मसाइल को हल होने में आखिर क्या रुकावटें जो हैं वो मौजूद हैं, और किन रुकावटों के दूर होने के बाद यहाँ के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके बात करेंगे SDPO से। वेलकम बैक नाज़रीन। तहसील कोटशुटा के मसाइल जो है वो जान चुकी है, और यहाँ गुज़श्ता कुछ अर्से के दौरान जो क्राइम रेशो है वो कहीं ज़्यादा थी, और इंडस हाईवे पे जो हादसा की शरह है वो भी ज़्यादा हादसा जो हैं इस शाहराह पर पेश आते रहे हैं, और ये मुतासरीन भी इनकी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। कब्ज़े के हवाले से भी मसाइल जो हैं वो यहाँ रहते हैं। चोटी का जो इलाका है उस हवाले से वहाँ भी जो दीगर इलाके हैं वहाँ मुख्तलिफ़ वारदातों के हवाले से भी पुलिस का जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो अब शुरू कर दी गई हैं। SDPO हैं, पुलिस के काबिल अफसर हैं, एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, कोटशुटा जी लाखों की आबादी है और सैकड़ों मवाज़ात हैं, क्या मामला हैं, किस हद तक कानून की जो है वो अमलदारी है, अमन व अमान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे है जी, लाखों की आबादी पे मुश्तमिल ये सर्कल है तहसील कोटशुटा। 7 लाख के करीब इसकी आबादी है। यहाँ पे 4 थाने हैं और 3 चौकी जात हैं। सब क्राइम के हवाले से जैसे आपने फरमाया है, कुछ दिनों इस तरह की सूरत हाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मामला काफ़ी बेहतर हैं। ओवरऑल जो है क्राइम यहाँ का मोस्टली मोटरसाइकिल स्नैचिंग है, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, कुछ कब्ज़े के कोदों का कोई रिपोर्ट्स आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो गए, इस तरह का मिसलिनियस किस्म का क्राइम है जो मोस्टली रिपोर्ट होता है। तो काफ़ी एक्टिव है यहाँ की पुलिस, SHO सामान भी, और मैं ज़ाती तौर पे उनको सुपरवाइज़ करता हूँ। तो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरत हाल नहीं है कि भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो, या कोई इस तरह का खून खराबा या कोई सरेआम वारदातें। काफ़ी बेहतर हो गई हैं चीज़ें, मज़ीद भी हम इस पर वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको बहुत बेहतर बनाएंगे। साइलिन के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? 4 थाने हैं, 3 आपने चेक पोस्ट बताई कि 3 चेक पोस्ट जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एक तरफ तो यहाँ पहाड़ नज़र आता है, और एक तरफ इंडस जो है, रिवर मार्टी इंडस जो है वो गुजर रहा है, रिवराइन पोस्ट भी हैं और पीछे पहाड़। तो इसके दरमियान का इलाका जो है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातें जो हैं वो आपने बताई कि वो ज़्यादा हैं। तो क्या जो आपके SHOs हैं उनको क्या स्ट्रेटजी जो है इस इन जराइम पे काबू पाने के हवाले से क्या तरजीहात हैं, और साइलिन की किस हद तक जो है वो सुनवाई हो रही? जी ऐसे ही है जैसे आपने इसकी नक्शा कशी की है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ दरिया है, दरमियान में ये इलाका वाक़ है। वारदात भी ज़रूर इक्का दुक्का हो जाती है इस तरह की। साइलिन के हवाले से एक तो जनाब IG साहब का और CM साहब का एक ओपन क्लियर विजन है, उसको हमने मद्देनज़र रखा हुआ है कि एक टाइम फिक्स है जिसमें मैं और मेरे SHOs कैमरे के सामने अपने ऑफिस में बैठते हैं और प्रॉपर साइलिन को अटेंड करते हैं। इसके अलावा भी रात गए तक हम मौजूद रहते हैं। अभी कोई साइल, कोई हाजतमंद, कोई कंप्लेनेंट आए तो हम उसको भरपूर अटेंड करें और उसकी भरपूर कार्रवाई करें। अच्छा, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रीजनल पुलिस ऑफिसर ने की, तो कोटशुटा सर्कल के हवाले से भी जो रिकवरीज थी, तो पुलिस को किस हद तक रिकवरीज में कामयाबी मिली है, और रिकवरी के हवाले से क्या प्रोसीजर है कि क्या जो ट्रेस कर ली जाती है वो साइल को उसका हक वापस मिल रहा है? जी बिल्कुल ऐसे है। जो हालिया कॉन्फ्रेंस जनाब RPO साहब ने की थी उसमें कोटशुटा सर्कल ने भी शमूलियत की थी।
हमारे उसमें 10 लाख से के करीब कैश रिकवरी थी, कोई बाइक्स थे, वेपन थे हमारे। तो रिकवरी के हवाले से यही होता है हमारा फोकस कि जब वारदात ट्रेस हो जाती है कि उस पर पकड़े जाते हैं तो हम उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल रिकवरी हो। फिर जो तरीक़ाकार है कानूनी, मुलजमान को हम शनाख्त परेड पर भेजते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है और बाद में जो मुद्दई हैं रिकवरी को सुपरदारी पे ले जाते हैं। जी बिल्कुल, कोटशुटा तहसील में जो है वो अमन अमान के हवाले से जो है वो तरजीहात तब्दील की गई हैं और साइलिन की सुनवाई पहली तरजीह में शामिल है और लोगों के अमन व अमान कायम रखना जो है उस हवाले से भरपूर न सिर्फ वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं बल्कि हर तरह के इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। अभी चलेंगे और जो शहर के हवाले से जो मसाइल हैं, तजावज़ात के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, सफाई के हवाले से, तो जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं हम उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आज हम जो है मसाइल हमने आपको दिखाए हैं तहसील कोटशुटा के कि लोगों को किस कदर जो सेहत सफाई के हवाले से बुनियादी मसाइल का सामना है। 2 लाख से ज़ायद आबादी है शहर की और पीने का जो साफ़ पानी है वो दस्तियाब नहीं है। सीवरेज के हवाले से इशूज़ जो हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं। इंक्रोचमेंट भी जो है वो शहर में नज़र आ रही है और हमारे साथ मौजूद हैं इंतज़ामी अफसर हैं नवीद बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोटशुटा। सर वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तहसील कोटशुटा के मसाइल की बात करें तो लोगों ने अंबार लगा दिए हैं कि बुनियादी मसाइल जो हैं बिलखसूस सफाई के हवाले से और पीने के साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से, तो इस कदर आबादी को पीने की साफ़ पानी की सहूलत तो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे साफ ज़रे जो हमारी इस वक्त की फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी बड़ी आबादी को कैटर फॉर नहीं कर रही, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं और वक्त के साथ साथ ये इम्प्रूव भी हो रहा है। जो यहाँ का बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तहसील अब नई बनी है कुछ साल पहले ही, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछाने में और फैलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये वक्त के साथ चीज़ें होंगी। तो इसके जो बेसिक बुनियादी सिविक इश्यूज़ हैं, जैसे आपने बात की कि सफाई के हवाले से आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो सफाई का स्क्वाड है, एमसी बेसिकली उसको डील कर रही है, तो हमारे पास इसकी मशीनरी भी अवेलेबल है, लोग भी अवेलेबल हैं और डेली स्क्वाड काम भी करता है। अब इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है हमने, स्ट्रीमलाइन करने के बाद तो कुछ सफाई की सूरत हाल बेहतर हो गई है। इसके साथ ही हमारे पास जो आपने इंक्रोचमेंट का इशू बताया, उसमें भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ बेसिकली जो रेढ़ी वाले हजरात हैं, ये हर शहर का ही इशू है, बड़े बड़े शहरों का भी मसला है। तो इनको हम फिर डिस्करेज इसलिए नहीं करते कि ये दिहाड़ीदार तबका है, साफ ज़रा इनके अपने मसाइल हैं, वो फिर अपने मसाइल को उनको देखते हुए फिर भी जो सड़क है इंडस हाईवे का एक पोर्शन है और हम जितने भी वहाँ खड़े रहे तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नज़र आ रही थी कि बड़ी बड़ी बसेस भी और ट्रॉलर भी जो है वो बाज़ार के बीच बाज़ार में से गुजर के जा रहे हैं। और बात ये नहीं कि रेडियाँ तो मौजूद हैं, उनके साथ जो चिंची रिक्शों की वजह से जो सड़क पे एक ब्लॉकेज की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो उससे यकीनी तौर पे मसाइल जो हैं वो बढ़ गए हैं। जी, ये वही बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मसला है। मैं उसमें आपको अपना थोड़ा सा विजन शेयर कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने रेढ़ी को एक थीम दिया है। यहाँ पे जो रेढ़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं रोड के ऊपर, हमने उनको कहा है कि कोई भी एक बाकायदा थीम के बैनर के साथ उसके बगैर वो नहीं लगेगी। वो हमने उनकी एक लिमिट भी मुतय्यन कर दी, वो उसके साथ नहीं आएंगे। अब जो रिक्शे का और बाकी बड़ी बसों का इशू है, वो इशू बेसिकली ये है कि अभी तक हमारे पास कोई बस स्टैंड ही नहीं बना। अब बस स्टैंड एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको बनाने के लिए कुछ टाइम भी दरकार है। जब बस स्टैंड बनेगा तो ये रिक्शे और बसें साफ ज़रा उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। दूसरा डेवलपमेंट के हवाले से ये है जो रोड का, उसमें ये है कि अभी हमारे शहर का डिवाइडर हमने प्लान किया है, मेन रोड का डिवाइडर, तो वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ इस फेज़ में इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जो मेन काम होगा डेवलपमेंट का वो ये होगा कि हम एंट्री एग्जिट गेट्स प्लान कर रहे हैं ताकि बड़ी गाड़ियां भी अंदर मखसूस टाइम के वक्त के बाद आएँ, उससे पहले ना आ सकें। और वो एक ADP की स्कीम होगी, इंशाल्लाह वो भी अप्रूव करवाएंगे तो वो नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा सर, 107 मवाज़ियात हैं तहसील कोटशुटा के और बड़ी ही लाखों एकड़ अराजी जो है वो बड़ी ज़रखेज़ है और एक तरफ से जहाँ चोटी पहाड़ लगते हैं तो दूसरी तरफ माइटी इंडस रिवराइन एरिया जो है उसका सारा वो भी एक तवील बेल्ट है। किसानों के जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल हो सकते हैं और खाद इस वक्त एक बड़ा प्राइम इशू बना हुआ है।
تو کھاد کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کیا ترجیحات ہیں, کیا اسٹریٹجیز بنائی گئی ہیں, کیونکہ یقینی طور پہ جو گندم کی فی ایکڑ پیداوار ہے وہ انہی زرخیز علاقوں سے پیدا ہوگی, کیونکہ ڈرغازی خان کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ پہاڑ پر مشتمل ہے. ایک جو یہ بیلٹ ہے یہی ایک سب سے زرخیز بیلٹ ہے, تو کسانوں کو کس حد تک ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہاں, یہ بیسیکلی اب جغرافی کا ایشو ہے جو ہمارا کوٹ چھٹا کی ایک چھوٹی سی کریکشن درکار ہے. یہاں پہ کوٹ چھٹا کے 121 مواضعات ہیں. بیسیکلی 121 میں ہمارے پاس 2.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے پاس 2.5 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ کاشتہ رقبہ ہے, جس کے اوپر ویٹ, تمباکو, یہ 2 بڑی فصلیں ہیں یہاں کی, یہ کاشت ہیں. اور کھاد کا جو ایشو ہے مارکیٹ پہ سٹریس بھی رہا ہے, یہاں ایشو بھی رہا ہے, لیکن چیف سیکرٹری صاحب کی ہدایات کے بعد جو ہم نے اپنا UC پلان ایشو کیا ہے اور ڈسٹریبیوشن آف فرٹیلائزر ایز پر ڈیمانڈ ان دا UCs, یہ جب ہم نے کی ہے تو ہماری سٹریس جو ہے وہ شاپس پہ کم ہوا ہے, لائن بھی ختم ہو گئی ہیں, اور اب یہ سٹریس مارکیٹ میں انشاءاللہ 2-3 دن میں بالکل ختم ہو جائے گا. چلیں, اچھی خبر ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سڑک چوٹی کو جا رہی ہے, جو گترا کو جا رہی ہے, ایک بڑا نیٹ ورک ہے فارم ٹو مارکیٹ روڈز کا جو ہے اندر, لیکن کچھ سڑکوں کی حالت جو ہے وہ بہت دیگر گئے ہیں, وہاں سے سفر کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں یا جو نیٹ ورک ہے روڈز کا, اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ جو بیسیکلی شہر کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تو میونسپل کمیٹی کرتی ہے, ڈیولپ کرتی ہے. جو چوٹی روڈ ہے ہمارا, چوٹی سے آگے میونسپل کمیٹی کی حدود تک, اس کا تو آلریڈی ہم نے پہلے, کیونکہ یہ تحصیل کونسل تھی, تحصیل کونسل کے فنڈ سے ہم نے اس کو سکیم بھی اپروو کروائی, لیکن اسی دوران میں لوکل گورنمنٹس کا جو یہ مرجر ہوا اور نیا ایکٹ انٹروڈیوس ہوا, اب وہ ضلع کونسل ہوا, تو اب ان کا فائنل سٹیج پہ فیصلہ ہونا ہے کہ ان سکیمز کا ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن جو میونسپل کمیٹی کی حدود میں جو فنڈز آ رہے ہیں اس کے اوپر, یہ چوٹی روڈ کے اوپر 1-2 ہمارے الیکٹرک پولز کی بھی اشد ضرورت تھی, وہ اسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور روڈ کو, اس کی ہم فیزیبلٹی بنا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی کچھ دن کے لیے, کچھ دن تک ہم اس کو فائنلائز کریں گے. اچھا, ڈیرا اور تحصیل کوٹ چھٹا کا فاصلہ جو ہے وہ 20 سے 25 کلومیٹر کے درمیان کا یہ فاصلہ ہے, اور بڑا جو ہے لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ یہاں تحصیل کورٹس بھی نہیں ہیں کہ انہیں انصاف کے لیے. جی ہاں, تو ٹرانسپورٹ کا بھی ایک بڑا ایشو جو ہے وہ یہاں لوگوں کو ہے کہ چنچی رکشے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو کسی کو اربن ٹرانسپورٹ سروس کے حوالے سے, ضلعی انتظامیہ سے, ڈویژنل انتظامیہ سے, تو اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ اب ٹرانسپورٹ کا ایشو جیسے میں نے پہلے بتایا, جب تک یہاں بس سٹینڈ نہیں بن جاتا تب تک ایشو ریزالو نہیں ہوگا. پچھلی میں نے ایک میٹنگ کی تھی یہاں پہ, بس جو سروس والے ہیں یہاں پہ, ڈیلرز جو لوکلی ان کو ڈیل کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کا ایک پلان کیا ہے کہ ہم اس کو بس سٹینڈ کو اسٹیبلش کریں. بس سٹینڈ بیسیکلی لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کرتی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ لینڈ کا ہے. کوٹ چھٹا کا پرائم اور بیسک ایشو جو ہے وہ کالونی لینڈ یعنی گورنمنٹ لینڈ کا ہے, وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے ہمیں لینڈ ایکوائر کرنی پڑتی ہے, تو اس کے لیے صاحب ذرا ایک فائنینشیل برڈن اور فائنینشیل لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا کام تھوڑا سا وہ رک جاتا ہے. لیکن پھر بھی ود دا پیسج آف ٹائم اب کرنا تو ہے, جیسے یہاں پہ باقی بہت سارے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, ان کے لیے لینڈ بھی ایکوائر کی جا رہی ہے, کالجز, سپورٹس گراؤنڈ ایٹسٹرا. تو اسی طرح باقی یہ سب بھی کریں گے. جیسے ہی ہم بس سٹینڈ اسٹیبلش کریں گے تو یہ ٹرانسپورٹ کا ایشو بھی انشاءاللہ ساتھ ریزالو ہو جائے گا. جی, یقینی طور پہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے حکومتی اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ بہتر سہولیات میسر ہو سکیں. بس سٹینڈ کی تعمیر کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ جو آمد و رفت کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے بھی جو پلان ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. چوراہوں کو اور شاہراہوں کو کشادہ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لائحہ عمل طے کر لیا گیا ہے. اب کسانوں کو بھی جو ایک بڑی اچھی خبر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا نے شیئر کی کہ جو ہے وہ UC لیول پہ جو ہے وہ لسٹیں مرتب کر کے وہیں کھاد جو ہے اس کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ وہیں کیا جا رہا ہے, جس سے یقینی طور پہ کسانوں کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے اور ملے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو پروگرام نیوز نائٹ سے. اللہ حافظ.